बोल रही हूँ? सोसाइटी गोल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो गया है, इंडिविजुअल गोल्स हो गया है. Now we will continue with the introduction part. We will extend introduction part little bit more. और आज हम लोग बात करेंगे, उस दिन हम तुम लोगों को एक्सप्लेन किए कि HRM का प्रैक्टिसेस आफ्टर LPG काफी चेंज हुआ है. देखिए आप लोग फाउंडेशन समझ जाएंगे ना तो एक्टिविटी समझने में टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन का 3-4 क्लास ले रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि HRM, व्हाई इज HRM इम्पोर्टेंट. काफी सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं पूरा कोर्स पढ़ लेने के बाद भी. ओके, सो today we will discuss a little bit on what is the nature of HRM and what has been the impact of LPG, liberalization, privatization and globalization on the HRM practices. How have the HRM practices changed ever since LPG? Okay, let's start. Nature of HRM. Write down the topic. मैम नीचे थोड़ा खींचे, दिख नहीं रहा है सही. Even apart from what I am writing, अगर आपको क्लास के डिस्कशन के टाइम पे कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है आपको लिख देना चाहिए, तो then you just make your own star mark and write it down. Not everything I'll dictate. Nature of HRM. क्या मतलब होता है nature of HRM का? See, just like any subject, just like any other subject, हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर है कि वो किस डायरेक्शन पे काम करता है, वो कैसा काम करता है. How will you interpret the importance of that subject? So is the importance of HRM, which is human resource management. क्या नेचर है HRM का बताइए. होमवर्क दिए थे हम, बनाए हैं, पॉइंट्स बताते जाइए. फ्यूचर ओरिएंटेड, आफ्टर फ्यूचर development oriented, good. Interdisciplinary, yes. Pervasive, employee orientation. Your name? Tanvi. You tell me some points. Tanvi, now you are regular in my class. Okay, in payroll you were not regular, but when you're doing HR workshop, you better be participative. Okay, that is the only way you will learn. Even if you say the wrong answer, that's okay. That's not going to matter. What's going to matter is how much you interpret in class. आप दोनों? Procurement of? Obviously. HRM is, this is the primary function, procurement of employees. Development of employees, I can make out from your face that you have not done your homework and you are just trying to cover it up. I can make that out. Nature of HRM. See, first point, आपने जितना points बोला वही सही है. The first point, write down, start writing. First point is this is action oriented. Second point, this is future oriented. Third point, works for employees' benefit. Fourth point, pervasive. Fifth point, multidisciplinary. Next point, continuous process. मैम थर्ड पॉइंट क्या है? Works for employees' benefit. देखिए, point number 1, action oriented.
Point number 2, future oriented. And your voice is break. Point number 3, works for employees' benefit. Point number 4, pervasive. Point number 5, multidisciplinary. Point okay. Quickly, we'll cover the nature of HRM. Nature of HRM का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या है, जब ये काम करता है तो इसका ओरिएंटेशन क्या है. The first point is action oriented. The first point is action oriented. Action oriented means that the first point is action oriented. Action oriented का मतलब होता है कि human resource management is not just about maintaining personal records. ठीक है, सिर्फ राइटिंग का रिकॉर्ड लिखने या फिर मेंटेन करना ही सिर्फ इसका काम नहीं होता है. They work for action, things that would initiate action. For example, change in the development of an employee. Is this not action oriented? This is action oriented. You might need, you're bringing in the software, you're getting it settled in the organization. You will start working on that software after 2 years. Will you not plan for the skill set of that after that 2 years? You have to plan, right? Second point is future oriented. HR practices का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अभी जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना या उनको बेनिफिट देना. हम 10 साल बाद भी प्रोजेक्ट करते हैं कि बिजनेस का पैटर्न कैसे चेंज होगा. ठीक है, बिजनेस का पैटर्न कैसे चेंज होगा जब MPP होता है, मैन पावर प्लानिंग, जिसमें कि हम ये बनाते हैं कि जैसे आज अगर 2021 है और बॉटम लेवल पे 250 एम्प्लॉइज काम करते हैं तो 2031 आते आते यहाँ पे कितने लोग बचेंगे. ठीक है, कितने लोगों का गैप होगा, कितने लोगों को इंटरनली प्रमोट लेना है, कितने लोगों का हायरिंग एक्सटर्नल होगा यानी बाहर से लाया जाएगा. आप मैनेजर इंटरनल लेवल से भी तो बन सकते हैं प्रमोट होके, और एक मैनेजर को बाहर से हायर किया जा सकता है. So both are different and it depends upon the policy of the organization. Fine. Now the third point is, next point is works for employees benefit. See, I taught you compensation management and there हम लोग बहुत डिस्कस किए कि benefits का यूज कितना ज्यादा हो गया है अभी. It is not merely an indirect form of compensation. I mean, the status of benefit has not just remained as an indirect form of compensation, but rather this has more advantages than just 1 or 2. Internally, to keep you happy. I explained this to you by giving example of canteen, didn't I? Did I give that example in your class? कि आप अभी without stationery, without cafeteria function कर रहे हैं, but if these two things are present, you'll be happier. You'll be happier. Okay, there will be one extra motive of going to college. This is how employees are also layered. ये आपकी psychology पे काम करता है. Google का जो internal office होता है उसमें स्लाइड वगैरह सब लगा हुआ है. कितना फनी है ये, लेकिन आपको लगता है कि बिना रिसर्च वर्क किए हुए ऐसा किया गया होगा? दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी हेडक्वार्टर में अंदर स्लाइड लगा हुआ है. आप थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चले जाइए, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे. There's entire sports infrastructure in its building, I mean in its premise. Google works on 70-20-10 principle. ये 10 जो बाकी बचा होता है, इस 10 में एम्प्लॉइज को छोड़ दिया जाता है. एम्प्लॉइज आर फ्री टू थिंक. If there is anything they can come up with, if there is anything new they want to add to the organization. Google Doc इसी का नतीजा है, किसी एम्प्लॉय के इनोवेटिव आइडिया का. Gmail, ठीक है. So
एम्प्लॉयज को किस तरीके से खुश रखा जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जा सके, दे दिस इज सो ऑब्वियस। जब आप खुश रहते हैं तो आप देखते हैं आप हर चीज को कोप अप करने के लिए तैयार होते हैं। देयर आर सम डेज वी आर वेरी हैप्पी, सुबह से ही एनर्जेटिक फील होगा, एंड देन देयर आर सम डेज वी आर लाइक डल, सुबह से ही डल फील होगा, थ्रू आउट द डे यू विल फील डल। So, but if you feel dull for more number of days than you feel happy at workplace, that's going to affect the productivity, right? That is why this is very important to keep an employee happy. So, HRM works towards the employee's welfare and benefits. बहुत सारी चीजें हैं, employees benefits और welfare के ऊपर हम 2 क्लास ले सकते हैं, तो हम आपको चुन चुन करके पॉइंट्स बता देते हैं। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए ये सब बनाया गया कि कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए जो गर्मी में ठंडा और ठंड में नॉर्मल होना चाहिए। देयर शुड बी स्पिटून, स्पिटून माने थूकदान भी होना चाहिए। और भी चीजें, क्रेच का प्रोविजन डाला हुआ है। क्रेच माने why don't you ask if you don't understand anything? आप पूछते क्यों नहीं है, एकदम सुनते जाते हैं। क्रेच का मतलब पता नहीं था, अभी हम नहीं पूछते तो आप आगे बढ़ जाते हैं। This is not a good practice in class. I do not encourage all this. क्रेच का मतलब होता है, आपने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस में मदर्स भी काम करती हैं, the working mothers. Sometimes you have arrangement to keep your baby at home, sometimes you don't. जैसे मजदूर वगैरह के बच्चे वो कहाँ रहेंगे, या मजदूर ही क्यों, बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे कि जो ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं, she does not have that facility at home, या सेफ नहीं है, या बहुत सारी बात होती है। बच्चे को छोड़ना is not an easy thing until you are very safe with the option. उसमें क्रेच की फैसिलिटी दी जाती है। क्रेच माने, क्रेच जैसे कि वर्किंग मदर्स, एक क्रेच होता है बेबी केयर के लिए, वहां पर आया होती है, वहां के जो ऑथराइज्ड पीपल होते हैं जो केयरटेकर की तरह होते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, दे विल टेक मनी, दे विल चार्ज मनी, आया वगैरह होती है, आप बच्चे को लाइए वहां पर छोड़िए, एंड देन उनको दूध बिस्किट सब कुछ दिया जाएगा, एंड देन व्हेन यू आर लीविंग फॉर होम यू कैन टेक द चाइल्ड अलोंग। ओके, तो ये चीजें हैं, ये एम्प्लॉयज बेनिफिट में दी जाती है ताकि मदर्स को, जो हम कहते हैं कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ रही है, मदर्स बढ़ रही है, आप उनके बच्चों को सेव करेंगे तभी तो मदर्स विलिंगनेस शो करेंगी काम करने का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है, which pervasives through various layer, like इतना सारा पत्थर रखा हुआ है, बहुत सारा पत्थर है जमीन पे, ठीक है, और यहाँ से पानी गिर रहा है और पानी हर जगह नीचे चला गया, this is pervasive. It can apply everywhere. Sorry, We can say that it can apply everywhere. हाँ, it applies everywhere. This word is very, management is very pervasive. The concept of management is very pervasive, which means that it applies everywhere. Pervasing मतलब pervasing through various layers or strata. हम HRM की बात कर रहे हैं, HRM तो हर डिपार्टमेंट में हो रहा है ना, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी काम करेंगे तो आपका स्किल तो देखेंगे ही हम अकाउंट्स में लेने के पहले, आप मार्केटिंग में काम करेंगे तो हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, हम आपको अपग्रेड करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जितनी HR का फंक्शन, जितनी HR एक्टिविटीज है, हर HR एक्टिविटी को तो हम लगाएंगे ही ना, किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे हो, प्रोडक्शन हो, वेयर हाउस हो, सब लोग मिलकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की। So HRM practice is pervasive. It pervasives through every department. समझ में आई बात? आ रही है ना? Any doubt? Ask me. Multidisciplinary. What do you understand by multidisciplinary? It means to bring together all the resources. Not resources.
डिसिप्लिन माने क्या होता है? अनुशासन नहीं, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब अलग है। नो, डिसिप्लिन का मतलब होता है हम लोग, आप लोग रिक्रूटमेंट वगैरह का फॉर्म देखिए, इसलिए हम वो जॉब डिस्क्रिप्शन मांग रहे थे, हम ला के आप लोग को क्लास में डिस्कस करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है आप किस फील्ड से हैं, लाइक आप कहीं फॉर्म भरेंगे ना रिक्रूटमेंट वगैरह का, व्हाट इज योर डिसिप्लिन, तो आप बैकग्राउंड में लिखेंगे बीकॉम, बीबीएम, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब होता है फील्ड या एरिया ऑफ स्टडी। दिस इज एचआर का कोई ऐसे प्रिंसिपल नहीं है कि हम बस पढ़ लिए और खत्म हो गया एचआर। एचआर इज मल्टी डिसिप्लिनरी और interdisciplinary. I am one teacher. I am delivering lecture to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 people are in class. I am delivering my lecture equally to 10 people in class. क्या आप 10 लोग एक तरीके से समझ रहे हैं? नहीं। किसी को ठीक से समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, which I know. And at the end of this workshop, when I will take test or when I'll have a test of your understanding कि आप कितना समझ गए इस वर्कशॉप से, कुछ लोग बिल्कुल जीरो ही रहेंगे। हम उधर क्लास में ये भी पूछें कि हम क्या पढ़ाते हैं, जब वो कुछ नहीं बोला था, ये हालत होती है। Really, I asked them, अच्छा यही बता दो कि हम क्या पढ़ाते हैं। अरे not you, I'm telling you कि students who are just not even attentive enough in class कि उनको ये भी नहीं पता है कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो फिर I'm so happy to see their progress when they will give me examples and explain. मैम एग्जाम्पल से समझा दें। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी अलग अलग है, हमारा लर्निंग अलग अलग है, हमारा एटीट्यूड, हमारा मोटिवेशन, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं तो ओबी भी मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, एंड सिमिलरली एचआर इज आल्सो मल्टीडिसिप्लिनरी। वी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके, एंड इकोनॉमिक्स। व्हाई इकोनॉमिक्स? जब आप एमपीपी पढ़ेंगे ना, मैन पावर प्लानिंग, तब उसमें बहुत सारा मॉडल्स पढ़ा जाता है कि कैसे मॉडल से हम मैन पावर को फिल करते हैं एक एक जगह पे, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लेबर टर्नओवर कितना हमको इम्पैक्ट कर जाएगा, हम कैसे, उसका फॉर्मूला है, उसका एक मॉडल है जो इकोनॉमिक्स के ऊपर चलता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज ऐसे ही नहीं हायर कर लेती है कि आप बड़ा अच्छा 10 साल कहीं काम करके आए हैं, आप फलाने कॉलेज के हैं, आप डिग्री लेकर के आए। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद योर बैकग्राउंड। इट हैज इट्स ओन प्रॉपर इंटरव्यू टूल जिसका अपना एल्गोरिदम है, और उसको सिर्फ यही मतलब है कि आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हैं कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम। गूगल में ऐसे ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं जो कि कोई बहुत शानदार कॉलेज से पढ़ के नहीं निकले थे। ओके, सो दीज आर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी, अब वो सब जब हम पढ़ते हैं तब हम स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई करते हैं। ये सब बहुत एनलार्ज हो जाएगा, पर अगर आप ध्यान रख सके तो यू जस्ट कीप इट रिमेम्बर। जैसे जब हम लोगों को लेते हैं ना, हमें कोई स्किल सेट चाहिए होता है, कोई ऐसा स्किल जो रेयर है। ह्यूमन रिसोर्स विल पिक पॉइंट रैरिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये हम फॉलोइंग क्लासेस में आपको बताना शुरू करेंगे। तब क्या होता है कि कोई स्किल, मान लो हम कॉग्निटिव एबिलिटी ढूंढ रहे हैं लोगों में, वैसे लोगों को हमको लेना है, 4-5 लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में। कोई नया प्रोजेक्ट है, वी नीड टू गेट गियर्ड अप फॉर दैट प्रोजेक्ट। हम मीन डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन निकाल के फिर हम देखते हैं कि
परसेंटाइल में जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा 84th परसेंटाइल, जिस आदमी का होगा वो थोड़ा अलग होगा, विल हायर दैट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। तो कहने का मतलब कि बहुत सारा कैलकुलेशन भी लगता है एचआरएम में, सिर्फ ऐसे नहीं है कि हाँ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ बेनिफिट अलाउंस, ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। समझ में आई बात? Yes, ma'am. So this involves a lot of other streams like psychology, anthropology, economics, etc., etc. It is multidisciplinary. Next point, continuous process. We need to keep people upgraded throughout till they work. Continuous process. जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एचआर जो सोर्स होता है, एचआर का जो काम देखती है, वो एक अलग, वो एक आउटसोर्सिंग कर देते हैं उन लोगों को, एंड दे विल कीप अरेंजिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पीपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। किसको क्या जरूरत है, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करके कि कोई एक चीज है जिसमें हम पिछड़ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, या फिर वी कैन बेटर अपग्रेड द स्किल्स, तो उनका ट्रेनिंग वगैरह करवाया जाए। तो क्या आपको जब हायर किया जाएगा बीकॉम के बाद या एमकॉम या एमबीए के बाद, तो आपको एक बार ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो मिलेगी ही, है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, तो क्या उसी ट्रेनिंग से आप रिटायर हो जाएंगे? No. The business is changing. You need to change yourself to remain competitive and to remain, important for the business organizations. You need to continually upgrade yourself. Python, workshop, ये सब क्यों कराया जाता है? ताकि skills ऐड हो आप में। इतने बच्चे वर्कशॉप कर रहे हैं, सब बराबर मन से नहीं कर रहे, लेकिन इनमें से काफी बच्चे होंगे जो जिस चीज को समझते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे सीवी में। Those who are career oriented, those who have their focus set. ठीक है? मोटिवेशन, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, इट विल वर्क ऑन यू ओनली व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ to listen to that motivation. वरना रोज मोटिवेशन वीडियो देखो कुछ नहीं होता है, ये अंदर से आता है। ठीक है? So this was all about nature of HRM. Fine. Now change, write another topic. Impact of LPG on HRM. एक्शन ओरिएंट किसके तरफ करोगी, गोल की तरफ तो करोगी। राइट नाउ इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन एचआरएम। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। Write down point number 1, staffing. Staffing. Second, देखो T&D लिख रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिख लेना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आगे जब भी पढ़ाएंगे उसको T&D ही लिखेंगे। Compensation, personnel services, restructuring, डन राइटिंग? लिख लिया? स्टाफिंग में लिखिए ग्लोबल एक्विजिशन ऑन पर्सनल। मैम बोलो। 5th पॉइंट आपने क्या लिखा है? 5th पॉइंट में लिखा है रीस्ट्रक्चरिंग, RESHRUCTURING, रीस्ट्रक्चर करना। स्पेलिंग लिख देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो देख लेना। ग्लोबल एक्विजिशन सब डिस्कस करेंगे अभी। राइट नाउ ग्लोबल एक्विजिशन ऑफ पर्सनल,
global acquisition of personnel, comma, online recruitment, comma, poaching, POAC, poaching, मैम ऑनलाइन recruitment, फिर लिखो poaching, POACH, poaching की जगह पे poaching लिखो बस, poaching, comma, attraction of diverse workforce, attraction of diverse workforce, etc. Staffing is over. You wrote examples of staffing. Abdul, your name is Abdul, na? Coaching का personnel का spelling क्या लिखे? NNEL. Good. देखिए एक चीज हम बता देते हैं, आप पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए इन दोनों में फर्क होता है, और हम जब भी पर्सनल बोलेंगे, पर्सनल और पर्सोनेल, पर्सनल का मतलब होता है लोग, बिलोंगिंग टू पीपल, और पर्सनल का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, योर ओन। ठीक, स्टाफिंग। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लिखिए अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, फटाफट लिखिए, एक्सप्लेन भी करना है फिर। अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, कॉमा, ऑडियो विजुअल, audio visual and PPT in training, audio visual and PPT in training, comma, online training, comma, video conferencing, comma, specialized courses, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉमा, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कॉम्पेंसेशन में लिखिए ESOP, बताए थे ना क्लास में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान डिस्कस किए थे, लिखिए, नहीं पता है, ठीक है, डिस्कस कर देंगे। ESOP, comma, LTC, comma, productivity linked bonus, मैम ESOP के बाद ESOP के बाद लिखो LTC, leave travel concession, LTC, comma, productivity linked bonus, productivity linked bonus, नेक्स्ट लिखिए पर्सनल सर्विसेज में लिखिए डे केयर फॉर चिल्ड्रन, डे केयर, DMI, डे केयर फॉर चिल्ड्रन, कॉमा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड लंच, free transportation and lunch, comma, gym facilities, gym, drink facilities नहीं देगा ऑफिस, gym facilities, comma, work life balance, work life balance, वर्क लाइफ बैलेंस के ब्रैकेट में लिखो फ्लेक्सी आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सी आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रिस्ट्रक्चरिंग में लिखिए अडॉप्शन ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर,
adoption of flat structure, comma, downsizing of workforce, downsizing of workforce, comma, VRS, voluntary retirement scheme, VRS, comma, redeployment of personnel, redeployment of personnel, done? Everyone written? मैम हाँ बोलो। मैम एडॉप्शन ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? हम बताते हैं, अभी डिस्कस नहीं किए ये सारा पॉइंट्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आइए और जल्दी जल्दी आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए आप जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि एक एचआरएम आपके बेनिफिट के लिए क्या क्या काम करता है। ये समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्रेज की फैसिलिटी के, इफ यू आर अ मैन देन इट्स ओके, बट इफ यू आर अ वुमन यू कैन ऐड योर क्रेज फैसिलिटी का एक एग्जांपल। देन वर्क लाइफ बैलेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के डेट में एचआर को एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसी कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सके। ठीक है, जो फॉरेन कंपनीज हैं उसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ से ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस होता है। जैसे पोलैंड वगैरह में जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे 4 days वर्किंग है सिर्फ, ठीक है, इन बिटवीन यू कैन गेट 2 कॉफी ब्रेक्स एंड दे डू दिस सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। ये बोल के छुट्टी देते हैं वो लोग कि आप सारा टाइम ऑफिस में ही रहेंगे तो आप घर पे कैसे ध्यान देंगे। हम लोग क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, they are given for they are you know ये सारी चीजें हम लोगों के पास आई कहाँ से, वहीं से आई है कि हम एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉइज को खुश रखना जरूरी है। सो जो यूरोप वगैरह की कंपनीज होती है ना, तो ये सब में जब इंडियंस जाते हैं उनको थोड़ा सा ये चीज फायदा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा मेंटेन होता है वहाँ पर। 4 days working, you can come office at 9 o'clock and leave at 4 o'clock, बीच में आपको 2-3 कॉफी ब्रेक आप ले सकते हैं, this that बहुत सारा चीज। and this is one reason why we would want to work in a certain company and not want to work in another company, right? So let's start staffing, जल्दी जल्दी डिस्कस कीजिए। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को कैसे मेंटेन किया जाता है। जब एलपीजी हुआ, एलपीजी के बाद क्या हुआ, we were globalized, our economy got integrated with the other economy, so there was global acquisition मतलब क्या होता है, acquire करना मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है, land acquire कर लिया, लेना मतलब global acquisition। So there was a global acquisition for manpower, people were taken from all around the world. Before that we did not entertain this. Second point is, tell me second point, online recruitment। see, मान लो इंडिया के गूगल में कोई काम कर रहा है, इंडिया में कोई बंदा काम कर रहा है या कोई लड़की काम कर रही है एंड दे हैव अप्लाइड फॉर अ पोस्ट इन हेडक्वार्टर्स अमेरिका में, क्या वो अमेरिका जाके एप्टीट्यूड टेस्ट देगी? अमेरिका जाके ऑनलाइन अमेरिका जाके इंटरव्यू देगी क्या? No. That will be an online recruitment. This has been changed by a change in technology. यहाँ से आप लोग जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप फॉरेन जाकर के टेस्ट देते हैं क्या? जीआरई का नाम सुना है? सुने हैं? बाहर जाने के लिए टेस्ट होता है। जी मैम, टॉफल इंग्लिश का कोर्स होता है। ये सारे एग्जाम्स बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए होता है एंड बिलीव मी, और आई मीन कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ इतना टफ भी नहीं होता है।
आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो लोग मैथ्स वैथ्स में थोड़ा वीक ही होते हैं। हाँ, I've seen that paper. My friend was preparing for it, so I know this. You know, first hand अपनी roommate prepare करती थी उसके लिए, so I know that. ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बना नहीं सकते। उनका ट्रिक ये रहता है कि क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग होता है। मतलब अगर आपको 20 क्वेश्चन है तो वो ये नहीं बताएंगे कि 15वां क्वेश्चन का ज्यादा मार्क्स है कि 11वां क्वेश्चन का। समझ में आई बात? देन देयर इज अ इंग्लिश एग्जाम, तो उसमें आपको सुन करके सीडी वगैरह कहीं ज्ञान गंगा में भी मिल जाएगा। You will have to listen to that and then you have to tell them एग्जाम में कि आप क्या समझे। आप जाएंगे अमेरिका, इंग्लिश ही समझ नहीं आएगी तो वहाँ तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका में रहने वाले लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे इंडियंस वहाँ काम करते हैं, लेकिन उतना मिनिमम होना चाहिए। उसके बारे में यू विल ट्राई बहुत ज्यादा है। सो दीज एग्जाम्स दे आर कंडक्टेड ऑनलाइन। अप्लाई करने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन हो जाने तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। समझ में आई बात? So this is how has this been possible? This has been possible through technology. So similarly एग्जाम की हम आपको बात समझाएं, इसी तरीके से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी होता है। स्विट्जरलैंड की किसी कंपनी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो ऑब्वियसली दैट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। जूम पे कैसे हो रहा है सब कुछ देख रहे हो ना, राइट? Next is coaching. Anyone has an idea of what coaching is? नहीं? ठीक है, वर्ड नहीं जानते होगे, बाकी कॉन्सेप्ट पता होगा। आपने ये सुना है कि मान लो कि दो राइवल कंपनीज हैं, मान लो कि इन्फोसिस है और सीटीएस है, ठीक है? इसमें कोई एक हाई पोस्ट पे ऐसा आदमी है जिसके आके ज्वाइन करने के बाद बहुत वैल्यू एडिशन हुआ है। माने कि whenever since he has been responsible for the management, इस कंपनी का कुछ तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ है। The employees are working better, their efficiency has improved, right? तो ये आदमी, और ये बहुत लर्नड है, इसके पास स्किल सेट्स बहुत है, 20-25 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी एकदम प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जहां पर कि आपको ऐसे रखा नहीं जाएगा जब तक आप में सही में टैलेंट ना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि किसी तरीके से, दिस इज कोचिंग इज अनएथिकल, ठीक है, इस पे केस भी कर दिया है कंपनी। ये कंपनी चाहेगी कि किसी तरीके से यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो या सीईओ है, उसको ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया जाए, यू नो, अट्रैक्टिव ऑर्डर, कि वो ये छोड़ के मेरे पास आ जाए। ये सुना है? दिस इज कोचिंग, दिस इज कोचिंग। इसके अगेंस्ट कंपनीज केस भी किए। एम्प्लॉइज को चुराना कह सकते हैं आप एक तरीके से, और ये बहुत ज्यादा होता है। जब बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनती है तो वो स्ट्रैटेजी सिर्फ अंदर के एनवायरनमेंट से नहीं बनती है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बनाया जाता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक्सटर्नल इंटरनल पढ़े हो ना, स्वॉट एनालिसिस पढ़े हो, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये एनालिसिस हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने में करती है, जिसमें से कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये इंटरनल फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता है इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में कॉम्पिटिटर्स आया कि नहीं? हम सिर्फ अपना ही प्रोडक्शन और सर्विस किए जा रहे हैं, हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटर्स क्या नया टेक्नोलॉजी ले आया, क्या नया चीज ले आया, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए कॉम्पिटिटर्स पे भी बहुत ध्यान रखती है कंपनीज। उसका एक डिपार्टमेंट ही होता है जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आसपास क्या चल रहा है, तो उसमें कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, ठीक है। और लोगों पे पहली नजर रखी जाती है कि कॉम्पिटिटर्स के यहाँ कौन सा आदमी आया है जो मेरे लिए बहुत यूजफुल है, तो हम कोचिंग करेंगे, उसको कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर देके अपनी कंपनी में बुलाना चाहेंगे। बेनिफिट वगैरह समझाते समय हम आपको समझाए थे कि
जिसकी 2 करोड़ सैलरी पहले से ही है, उसको तुम 10 लाख और दे दोगे तो कोई फायदा होगा क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको कुछ ऐसा देना होगा तुमको जो उसके लिए वैल्यू एडिशन हो, तो उसके लेवल पे दोगे ना। ठीक है, एक डोमेस्टिक एम्प्लॉय को तो तुम गोवा का वेकेशन भी 4 दिन का दे दोगे तो उसके लिए एक क्योंकि कितना भी कम करोगे बजट पैकेज रखोगे, दैट विल बी अ 50-60,000 पैकेज, राइट? जो 50 लाख कमा रहा है उसको 50,000 का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। सो वैसे एम्प्लॉइज को फिर आपको अब्रॉड का ट्रिप देना होगा, यूरोप का 15 दिन का, तब ना वो रुकेंगे। या बेनिफिट्स वैसे डिजाइन होती है, काफी कुछ सोचा विचारा जाता है। ठीक है, कंपनी के कॉस्ट वगैरह को भी रखिए। हम चाह रहे थे पर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, just wait, online students, you don't log out and take the attendance. So you should join and take the screenshot.